بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے آپ لوگ سے پہلے بھی کہا تھا، سکون، تشدید، مد دونوں آ گئے. مد اصلی بھی ہو گیا اور مد کے سمبلز بھی ہو گئے، جو وہ اور یہ تو کلر کوڈڈ ہے نا. اکفا، ادغام، کلکلا، جو بھی کلر کوڈڈ لیٹرز ہیں نا، یہ جو 4-5 رولز ہیں نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ قریباً 75% آپ کی جو تلاوت ہوگی نا، سب میں یہ انکلوڈ ہے. بعد میں اور باقی جو رولز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے رولز بعد میں آئیں گے، لیکن یہ آپ کی تلاوت کرنے کے لیے یہ کافی ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے ہر رول، اگر اگزامپل آپ کو میں دکھاؤں، اوکے، یہ جتنے بھی اس میں رولز نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کو، جتنے بھی کلر کوڈ رول، یہاں پہ مد آ گیا، یہاں پہ کلر ہے، یہاں پہ ہیوی لیٹرز ہیں، یہاں پہ کلر آ گیا، یہاں پہ الگ الگ کلر آ گیا. دیکھیں کبھی بلو ہے، کبھی کون سا کلر ہے، الگ الگ کلرز ہیں. تب یہ آپ دیکھیں گے یہ سب آپ لوگ کر چکے. صرف آج کا جو ٹاپک کو چھوڑ کے باقی سب آپ لوگ کو آتا ہے. یہ جب الحمدللہ ہم کلاس میں سب کور کر چکے ہیں. تو آج کا یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ خوبصورتی ڈیپینڈ ہوتی ہے تلاوت میں تجوید کی سے آتی ہے، ادغام سے آتی ہے، کلکلا سے آتی ہے. تو یہ آسان ہے، لیکن تھوڑا دھیان دینا ہے. اس کو دھیان دیں گے تو بہت ہی آسان ہے، اگر نہیں دھیان دیں گے تو ہر چیز مشکل ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ سے یہ ریکویسٹ ہے، اس کو بالکل دھیان سے اور سمجھیں اس کو، کیونکہ یہ تجوید کا بہت اہم حصہ ہے. چلیے، تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم اس پر اسٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے اسٹارٹ کروں میں کچھ کوشچن پوچھوں گا آپ لوگ سے. چلیے بلکس بیٹا، آپ مجھے بتائیے غنہ کسے کہتے ہیں؟ آپ غنہ کے بارے میں کیا سمجھتی ہیں؟ آپ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بول رہے؟ وعلیکم السلام. جی ہاں بتائیے بیٹا، غنہ کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ جی گنہ ناک سے نکلنے کی آواز کو گنہ کہتے ہیں. وہاں پر ہمیں 2 کاؤنٹ دینا پڑتا ہے گنہ کو. اچھا 2 کاؤنٹ. اچھا ناک سے آواز مطلب کس حرف، کون سے حرف سے ناک سے آواز، کس حرف سے نکلتی ہے ناک سے آواز؟ نون اور میم مشدد اور نون مشدد پہ گنہ ہوتا ہے. اچھا نون مشدد اور میم مشدد. اچھا باقی نون پہ گنہ نہیں ہوتا؟ اگر میں نے لکھ دیا نون ساکن لکھ دیا، میم ساکن لکھ دیا میں نے، اس پہ گنہ نہیں ہوگا؟ جی اس پر اتنا وہ نہیں ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. جی ناک سے آواز نکلتی ہے. جی ٹھیک. اچھا بٹ گنہ کے مطلب مشدد پہ ہی گنہ ہوتا ہے. اچھا نہیں، ابھی آپ ڈبل. اچھا مشدد پہ گنہ ہوتا تو میں نے کہا چلو یہ نون ساکن میم ساکن، نون پہ زبر میم پہ زبر. اب اس پہ باقی یہ جو ہیں اس پہ گنہ ہوگا نہیں ہوگا؟ جی نہیں ہوگا اس پہ. اچھا ابھی آپ نے مجھے بتایا گنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ناک سے آواز جی کا جاری ہونا، سے ناک سے آواز کا نکلنا. نکلنا. ہاں آواز نکلنا، ٹھیک ہے، نکلنا. اوکے. اب یہ نون اور میم، بھلے نون ساکن ہو یا حرکت والا ہو، متحرک ہو یا ساکن ہو، میم ساکن ہو یا حرکت والا ہو، تو اس کی آواز کا ناک سے نہیں نکل. اس کی آواز جی ناک سے ہی نکلتی ہے، بٹ اس کا یعنی مخرج ایسا ہے کہ اس کا یعنی ناک سے ہے، اس کا کنیکشن نکلتا ہے، بٹ یعنی تشدید پہ کبھی گنہ ہوتا ہے. یہاں گنہ نہیں ہوتا ہے،
बट आवाज तो नहीं वहीं से निकलेंगी जी। ये नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो आपने जो कहा वही लोगों की, सब मेजोरिटी की वही समझ है, वही समझते हैं गुन्ना का मतलब है। अभी लेकिन आपका भी, आपने जो कहा अभी स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है बिल्कुल। आपने जो कहा कि नाक से आवाज निकलने को गुन्ना कहते हैं, ठीक है, जबकि मीम, नून पे सुकून हो, मीम पे सुकून हो, मीम पे हरकत हो, नून पे हरकत हो, वो भी नाक से आवाज निकल रही है और आप कहें गुन्ना नहीं होता है, तो आपका स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना। आप जो कह रही हैं और वो तो अलग हो गया ना। जी हाँ तो अब ओके, अब क्या है, गुन्ना का मतलब यही है कि नाक से आवाज का जारी होना। ओके, जी ये सिर्फ नून और मीम में होता है, बाकी कोई लेटर्स में ये सिफात है नहीं, ये इनकी बिल्ट इन सिफात है। नहीं हाँ ओके, अब जो फर्क आया है, जी बाकी तो मीम पे मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद, बाकी जो नून और मीम है उसका क्या, वहां पे भी गुन्ना होता है लेकिन दर्जात उसके लेवल कम हैं, लेवल कम हैं। जी जैसे अभी, जैसे हमने कलकला के लेवल्स पढ़े जी थे, कितने लेवल थे कलकला में कितने लेवल थे, कलकला में कितने लेवल्स जी थे हमारे, तीन हमने, थे ना सर। हाँ जी 3 थे ना, हाँ लेवल 3 थे ना। तीन कल तीन तीन लेवल तीनों थे जी तीनों में कलकला जी हो रहा था, लेकिन किसमें ज्यादा किसमें कम जी और इसमें वीक। इसी तरह ज्यादा गुन्ने में भी दर्जात हैं, जी उसमें लेवल्स हैं, जी उसके रैंक हैं, जी ठीक है। अगर ये कहना नहीं बाकी में गुन्ना नहीं होता, ये कहना गलत है। गुन्ना होगा लेकिन कम दर्जे का गुन्ना होगा, ठीक है, क्योंकि जब हम जी कहते हैं कि जी यानी इसकी जो आवाज है सर ये नाक से जाएगी रहेगी ना जी। ओके ठीक, हाँ हाँ, तो ये कहना कि चलने वाली खास आवाज है जो नून और मीम, प्लीज बाकी सब माइक म्यूट करें प्लीज, प्लीज बाकी लोग माइक म्यूट करें। मैं हर क्लास में आप लोगों को समझाता हूँ लेकिन आप लोग नहीं समझते, प्लीज। गुन्ना एक नाक से निकलने वाली खास आवाज है जो नून और मीम में होती है। गुन्ना में जी आवाज को नाक में ले जाते हैं और थोड़े देते हैं, ये जो जो लेवल हाई है उसमें करते हैं। ओके, इस आवाज को नेसल साउंड भी जी कहते हैं, इंग्लिश में क्या होता है, नेसल साउंड। इस सिफ्त वाले हुरूफ जी नून और मीम की अदायगी में हमें देखो, हमें बगैर हमें इरादा किए हमारे, हम नून और मीम कहेंगे ना तो आवाज डायरेक्टली हमारे बिना इरादा किए नाक से ही आवाज निकलेगी हमारी, क्यों, इसकी बिल्ट इन सिफात है, इसकी क्वालिटी है, बिल्ट इन है। अगर हम इरादा नहीं करते हम नाक से आवाज निकालेंगे नहीं, हम नून बोल दिया, ना नी नू कह दिया हमने, हमारा इरादा नहीं है नाक से आवाज निकालना, लेकिन आवाज नाक से ही निकलेगी। ओके, इरादा है कि नाक में चली जाती है। ये कुरान की तिलावत को प्यारा, साफ और सही बनाती है। गुनने से क्या होता है, हमारी तिलावत में एक रिदम आता है, एक खूबसूरती आती है। ओके, ये क्लियर हो गया आप लोग को। ओके, जी सर। अब मैं आपसे किसी से पूछूं, चलिए इतना बात होगी, चलिए फातिमा बेग आप मुझे बताइए, फातिमा बेग अपना माइक अनम्यूट करिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, गुन्ना का डेफिनेशन बताइए। आप मुझे बाकी बाकी लोग प्लीज अपना माइक ऑफ करें, प्लीज प्लीज माइक ऑफ करें। फहमुद्दीन प्लीज अपना माइक ऑफ करें, मैं आप लोग कितने बार बोलूं। क्वेश्चन। ओके, जी सर। मेरा सवाल वही सेम है, गुन्ना किसे कहते हैं। जी सर, गुन्ने को नाक में आवाज को छुपाने को गुन्ना कहते हैं, यानी कि एक तरीके से बजिंग साउंड जो होता है, भिन भिनाहट, उसे गुन्ना कहते हैं। नाक से आवाज जारी करने को नाक सर भिन से आवाज भिनाहट की निकालने आवाज। गुन्ना कहते हैं। अच्छा जी ओके, सर। नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, ये सर बिनबिनाट हमिंग सुन साउंड जो होती है होता इसमें, है। हमिंग, एक हमिंग तरह होती है। जी ओके सर, चलिए, हमिंग हमिंग साउंड। साउंड होती है इसमें हम। ओके, जी सर। अच्छा अभी अगर मैं नून पे जबर लगाऊं या जेर लगाऊं, पेश लगाऊं या नून को साकिन कर दूं, तो क्या उसमें गुन्ना होगा या नहीं होगा। जी सर, होगा गुन्ना, बट ये थोड़ा कम दर्जे का होगा, हाँ, यानी दर्जे का कि। कम होगा। अब मतलब मेन बात आई, गुन्ना तो होगा लेकिन दर्जात में फर्क है। ओके जी सर। चलो, नो प्रॉब्लम, ये बात समझ में आ गई आपको, जी क्लियर सर। हो गया कि गुन्ना तो होगा, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं गुन्ना नहीं होगा। गुन्ना मीम और नून सर मुशद्दद देखो, गुन्ना होगा, इसके अंदर बाकी जो नहीं होगा। गुनवैया का जो जो गुनवैया कहते हैं इन लेटर को,
تو نون اور میم میں گننا کی شفت ہوتی ہے، شفات یا ہوتی ہے. اوکے چلیے اب ہم اب کچھ چیز چلو ابھی اس میں چلو اب وہ چلو ہم پریکٹیکل دیکھیں گے کہ گننا جو ہوتا ہے سب کو برابر ایک جیسا ہوتا ہے کہ اس میں فرق بھی ہوتا ہے. چلو ہم ایک ہی کر کے دیکھیں گے. چلیے اب یہاں جی پہ سر. نون اور میم کو میں نے دیا. چلیے اب مائک آف کر دیجیے اپنا. اب جی سر. میں یہاں پڑھ رہا ہوں. جزاک اللہ. چلیے یہ میں پڑھ رہا ہوں اما. اب ایک میم پہلے میم کو لیتے ہیں. اما اما میں نے گننا یہاں پہ میم پہ تشدید ہے میں نے گننا کیا لیکن یہاں پہ تھوڑا مضبوط گننا تھا. اما اوکے. اب دوسرا پڑھا ہوں میں یہاں پہ فیہا باذن ربہم من کل امر. امرن امر ربہم ربہم میں اس پہ میرا فوکس ہے. ربہم اوکے. یہاں پہ میم آ گیا. میم کے بعد ایک اور میم آ گیا تشدید کے ساتھ. اوکے اب یہاں پہ بھی ہم ناک میں آواز لے جا رہے ہیں. ربہم اوکے ربہم اوکے. پلیز آپ لوگ کوئی پلیز آواز آ رہی آپ لوگ کوئی بولے نا. اوکے اب یہ ہو گیا. اب یہاں پہ آ گیا ابھی ہم یہ ہم ہے اس کے بعد با آ گیا. وما ہم بمؤمنین وما ہم بمؤمنین. اب میں نے یہاں گننا کیا. اب یہاں آ گیا ابھی میم ساکن ہے یہاں پہ. انہم وردوا عنہ انہم وردوا عنہ. اب میں نے یہاں پہ گننا کیا. اوکے اب گننا کی وہ دیکھتی ہے میں نے کتنا زیادہ کیا کم کیا اس میں آپ لوگ سے پوچھوں گا میں. اب یہ آخر میں آ رہا ہے اس میں سکون تھا اس میں کیا ہے اس میں زبر ہے. اب ہم میم کے بارے میں دیکھ رہے ہیں نا. او امر او امر امر امر. اوکے اب آپ لوگ نے یہاں پہ دیکھا. چلیے اب میں کوشچن پوچھتا ہوں. نکھت خان آپ مجھے بتائیے میں نے یہاں پہ کتنے پڑھے 1 2 3 4 5 ورڈز میں نے پڑھے الگ الگ. کیا سب میں آواز گننا کی ایک ہی جیسی تھی یا تھوڑا فرق تھا؟ السلام علیکم وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام. ہاں سر ادھر میرا بہت سوال شور ہے. سر شور بہت ہے آپ کی آواز برابر آئی. اچھا اوکے نو پرابلم. میرا سوال یہ ہے ابھی میں نے جو 5 ورڈز پڑھے میم کے پڑھے ایک یہ پڑھے میں نے 1 2 3 4 سوری 1 کتنے سوری 1 2 3 4 5 یہ 5 ورڈ میں نے پڑھے ابھی. اوکے اب اس میں آپ کو میں نے گننا کیا الگ الگ تو اس میں کیا آواز ایک جیسی تھی کیا تھوڑا فرق تھا گننے میں؟ فرق تھا سر. فرق تھا نا. کس میں زیادہ؟ اچھا سب میں کم آپ کو کہاں لگا آپ کو سب میں کم؟ چلیے چھوڑا کر دیتا ہوں. سب میں کم کہاں لگا آپ کو؟ او امرا. ویری گڈ. او امرا. ہاں کم ہو گیا ناک میں آواز گیا لیکن کم لگا. ٹھیک اس کا مطلب اوکے اوکے چلیے اوکے. اب یہ آپ ثابت ہوگا کہ اس کے درجات ہیں الگ الگ لیولز ہیں. ٹھیک ہے اب نون پہ آتا ہوں. چلو اس میں دیکھیے اب اوکے آپ لوگ دھیان سے سنیے. یہ آ گیا نون پہ تشدید نا. ان ایک یہ ہو گیا. اب یہاں پہ آ گیا نون ساکن اس کے بعد ایک اور نون آ گیا. اوکے یہاں پہ آ گیا نون ساکن اس کے بعد میم آ گیا. اوکے مم مثلہ ولن نشرک. اب یہاں آ گیا تنوین کے بعد میم آ گیا. خیر من. اب یہاں پہ تنوین کے بعد نون آ گیا. 2 زبر ہے نا اس کو تنوین کہتے ہیں اس کے بعد نون آ گیا. اوکے ہاں سلطانا نصیرا سلطانا نصیرا. اوکے اب یہاں آ گیا. اب یہاں پہ نون کے بعد یا آ گیا تشدید ہے یا آ گیا. من یفعل. ابھی تنوین کے بعد یا آ گیا یہاں پہ بھی. خیر یرہ الٹا پیچھے. اوکے خیر یرہ. ابھی آ گیا نون ساکن کے بعد واو آ گیا. من ولی.
अभी यहाँ पे भी आया तनवीन के बाद वाव वाव आ गया, शैइन वकीलुन, शैइन वकीलुन। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, कुन्तु, कुन्तु। अब यहाँ आ गया नून साकिन था, उसके बाद ता आ गया था। अब ये तनवीन के बाद दौद आ गया, फी, फिरपुंदो, फिरपुंदो। अभी आ गया तनवीन के बाद बा है, अबदम बिमा, अबदम बिमा। ओके, अब यहाँ पे आ गया सिर्फ साकिन है, साकिन के बाद हा है, वन हर, वन हर, वन हर। अब यहाँ तनवीन के बाद हमजा है, गासिकिन इज़ा वक़ब, गासिकिन इज़ा वक़ब। अब ये नून पे ज़ेर है, हरकत है, बिइज़्नि रब्बिहिम, बिइज़्नि रब्बिहिम। चलिए अब ये मैंने पढ़ा। चलिए अस्मा हस्मी, आप मुझे बताइए इसमें सबसे, इसमें एक जो मैंने पढ़ा, काफी मैंने वर्ड्स पढ़े कि सबका गुन्ना लेवल एक ही आवाज आई क्या अलग अलग थी, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में बहुत ज्यादा कम? बताइए मुझे। सर अलग अस्मा अलग। हस्मी अलग अलग थी। मैंने अस्मा हस्मी हस्मी से पूछा किसकी आवाज आई थी, प्लीज मैं जिससे पूछूं वही जवाब दे। अस्मा हस्मी बेटा आप माइक अनम्यूट करिए। डॉक्टर नसीम आप बताइए मुझे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अब मैंने जो नून का पढ़ा मैंने, जी सर, सब में अलग अलग थी सर। अलग। तो सबसे कम कहाँ थी? सबसे कम सर यहाँ क्या बोलते हैं, एक मिनट सर, सबसे कम नीचे वाले में ये सर बिइज़्नि रब्बिहिम में ओके, थी। और सबसे ज्यादा कहाँ थी? सबसे ज्यादा ऊपर सर, ऊपर। ओके। अब इससे क्या प्रूव होता है? चलिए अब ये हमने क्या, सब लेवल अलग अलग लेवल है सर। कंफ्यूजन। अब मतलब ये देखिए, हाँ, अब तस्बीह देखिए, तारीफ तो अलग आ रहा है सर शायद। ओके चलिए, ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में हमने देखा कि गुन्ना, गुन्ना जो है उसका लेवल हर जगह सेम नहीं होता है, कभी लंबा हो, कभी लंबा तो कभी छोटा होता है। यानी गुन्ना के दर्जात होते हैं, इसलिए दर्जात बनाए गए हैं ताकि तिलावत बिल्कुल सही हो सके। ये क्या प्रूफ करता है? अभी हमने देखा ना, ये प्रूफ करता है कि गुन्ना गुन्ना के लेवल एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए ये किस लेवल में आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोग को? ये सिर्फ जी समझना सर। कौन ये लेटर में ऐसा हमने गुन्ना क्यों किया, यहाँ पे क्यों किया, वो अभी हम आगे सीखेंगे। सिर्फ अभी ये देखना है कि लेवल, ये प्रूफ कंक्लूजन ये है कि लेवल अलग अलग होते हैं, हमने ये हमें जाना। ओके जी अच्छा, अब गुन्ना के दर्जात कौन कौन से हैं? इसमें कलकला में लेवल 3 होते हैं, तीन गुन्ना थे के सर। 4 लेवल हैं। ओके 4 हैं। एक है अकमल, मतलब मोस्ट कंप्लीट, सबसे हाई लेवल, मुकम्मल। मुकम्मल। अब चलो आप लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। सेकंड जी है कामिल, मतलब कंप्लीट। थर्ड है नाकिस, इनकम्प्लीट। फोर्थ है अनकस, मतलब मोस्ट इनकम्प्लीट। ये अरबी और इंग्लिश नाम है, ये 4 लेवल्स हैं गुन्ना के जो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है? चलो ये लेवल्स तो हमने जान गए, डिटेल में हम अभी जाएंगे। अब जरूरी क्यों है आप देखें। गुन्ना के दर्जात इसलिए होते हैं क्योंकि, इसका रीजन मालूम होना चाहिए, जरूरी क्या, इससे इफेक्ट क्या होता है। फर्स्ट, सही तलफ्फुज, कुरान को उस तरह पढ़ना जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से आगे बढ़ते बढ़ते हम तक पहुंचा, मेन सोर्स का है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इसी तरह गुन्ना है, इकफा है, कलकला है, ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, इस तरह सहाबा को इस तरह पढ़ा जाता है। एक पॉइंट तो ये होगी, ये रीजन हमें इस जानना जरूरी है, इसके दर्जात। सेकंड, माने की हिफाजत, मतलब मीनिंग। अगर गुन्ना गलत हो जाए तो लफ्ज का मतलब भी बदल सकता है। अभी है ये है मैं कर दिया हमने, मैं हाँ? नून साकिन के बाद या आ गया, हम करते हैं मैं, नाक में आवाज ले जाए। हम क्या कर रहे हैं, मैं कर दे, नून में आवाज कान नाक में नहीं लगाए, मैं कर दे, बदल गया ना, बदल जाती है। खूबसूरती, गुन्ना की सही लेवल से किरात ज्यादा प्यारी और दिल को लगने वाली
लगती है, तिलावत में रिदम और हुस्न आता है। इससे क्या होता है, एक तरह का रिदम होता है, हुस्न आता है, ब्यूटी आती है गुन्ना से। हमने पढ़ा इन्ना इन्ना अंजलनाहु फी लैलिल, इन्ना अंजलनाहु, कुछ लग रहा है खूबसूरत नहीं, इन्ना इन्ना अंजलना, तो क्या आ गया इसमें, एक रिदम, एक खूबसूरती, एक लय आती है इसके अंदर। ओके, ये दर्जात में अलग अलग लेवल्स में। लास्ट में तजवीद का हिस्सा, गुन्ना को समझना और उसके लेवल को फॉलो करना तजवीद का बुनियाद है, जिससे तिलावत का हक अदा होता है। क्या ये बुनियाद है, बुनियाद है तजवीद की, क्या फाउंडेशन है, ये मेन चीज है, ये चीज तजवीद का हक अदा होता है। मतलब ये कि गुन्ना के दर्जात कुरान की तिलावत को सही, प्यारी और असरदार बनाते हैं। तो आप लोग समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है गुन्ना के बारे में जानना और उसके दर्जा लेवल के बारे में जानना, अलग अलग कौन कौन से लेवल हैं, ताकि हम उसको सही तरह से अदा कर सकें। ओके जी सर। चलिए, अच्छा ये नून साकिन और तनवीन दोनों एक ही हैं क्या? यस सर। यस सर। जी हाँ, सर। दोनों एक ही हैं, क्योंकि तनवीन में भी नून नून होता है, छुपा हुआ होता है, जी छुपा सर। हुआ नून होता उसमें है। भी जी सर, नून एक साकिन, ही है सर। हाँ उसमें भी नून एक है साकिन सर। छुपा होता है। हाँ, तो जब भी नून साकिन का जब कायदा आएगा तो तनवीन साथ में उसमें शामिल होगा, नून साकिन और तनवीन दोनों शामिल होंगे उसमें, दोनों को अलग नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसमें भी नून साकिन छुपा होता है, और नून साकिन तो नून साकिन जाहिर है ही। ओके, तो जब भी नून साकिन का रूल आएगा उसमें तनवीन भी शामिल होगा। ये आप लोगों को इतना क्लियर हो गया, सबको क्लियर है कि मैं आगे बढ़ूं? जी सर। अगर किसी को डाउट है मुझसे पूछ ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर अभी ये चीज समझ में नहीं, गुन्ना और दर्जात उसके जरूरी क्यों है, ये समझ में नहीं आया, तो आगे थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अभी हम इसको रोक के स्टॉप करके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये हम अभी समझ नहीं सकते हैं। ये दर्जात है कौन कौन से, इसके एग्जाम्पल ना, अब हमें इदगाम का मैंने कर दिया और इकलाब कह दिया, तो आप लोग समझेंगे नहीं। तो अब मुझे यहाँ पे स्टॉप करके डायरेक्टली मुझे मीम साकिन और नून साकिन के रूल पे जाना पड़ेगा, फिर वापस पलट के मैं यहाँ पे आऊंगा दर्जात पे, क्योंकि जब तक वो नहीं समझाऊंगा ये समझ में आएगा नहीं आप लोग को। तो ये क्लियर हो गया इतना, सिर्फ गुन्ना किसे कहते हैं, और गुन्ना के दर्जात होते हैं, अलग अलग रैंक्स लेवल्स होते हैं, और वो जरूरी क्यों है, क्योंकि वो हमें ये बुनियादी उसका बुनियाद है तजवीद की, ये हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सिखाया गया है, और इससे असरदार तिलावत असरदार होती है और खूबसूरती होती है, इसमें रिदम आता है इसके अंदर। क्लियर हो गया ये इतने पॉइंट्स? अभी सिर्फ इतना ही पॉइंट याद रखना है और कुछ नहीं। जी ओके, सर। और इसके चार, ओके, इसके 4 लेवल होते हैं, ओके 4 लेवल होते हैं, बस अब ये याद रखना है बस। अब चलो, अब हम आते हैं डायरेक्टली इस पे आते हैं। प्लीज अपना माइक ऑफ रखें, हम डायरेक्टली हम आते हैं पेज नंबर 9 पे जंप करके आते हैं। अब वो हम बाद में जाएंगे पीछे। ओके चलिए, मीम साकिन के रूल। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ओके मीम साकिन, इस पे भी उन्ना होता है। अब मीम साकिन का जो रूल है उसमें 3 चीजें हैं। 1 इजहार, 2 इदगाम, 3 इक्फा। ओके, इजहार का मतलब क्या होता है? जाहिर करना। जाहिर करना, क्लियर जाहिर करना। ओके, इदगाम का मतलब क्या होता है? मर्ज होना, एक दूसरे में मिल जाना। मर्ज। अच्छा, अगर मैं कहूँ मैंने मेरे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में हाथ मिला लिया, तो क्या बोलेंगे आपस में मिला है? नहीं, इसको मर्ज नहीं कहेंगे। भले हम मर्ज हो जाएगा, लेकिन दो जरूरत, हम दो, जब 2 लोग मिलेंगे, दोनों हाथ मिलाएंगे, आज हम बोलेंगे दोनों के हाथ एक दूसरे में मिल गए। अपने मैं अकेले मारूंगा तो एक ही शख्स हुए, मतलब इदगाम में 2 वर्ड में इदगाम होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अपना हाथ लिया, अपने हाथ दोनों हाथ राइट लेफ्ट में दोनों मिला दिया, वो तो एक ही वर्ड हो गया ना, एक ही हो गया, मैं एक ही हूँ, तो इसमें इसको इदगाम नहीं कहेंगे। इसको इदगाम होता है 2 वर्ड्स में,
दो वर्ड जब आपस में मिलते हैं, पहला वर्ड दूसरे वर्ड में मिलता है, पहले वर्ड का आखिरी लेटर और दूसरे वर्ड का पहला लेटर आपस में मिलते हैं तो बोलते हैं उसको इदगाम होता है, मर्ज होते हैं, मुद्गम होते हैं आपस में, उसको बोलते हैं मर्ज, आपस में मिलना। और इदगाम कभी भी एक कलमे में नहीं होता है, ये ध्यान रखो, एक वर्ड में इदगाम नहीं होता है। इसका मतलब हो गया मर्ज, मतलब मुद्गम होना, एक दूसरे में मिल जाना। ओके। तीसरा इख्फा मतलब हाइड करना, छुपाना। ओके, ये समझ गए आप लोग? मतलब इदगाम का मतलब जी होगा मिल जाना एक दूसरे में, इख्फा मतलब होता है छुपाना, और ये होता इजहार होता है जाहिर करना। ठीक है, अब ये तीन कैटेगरीज आ गए हैं मीम साकिन में। ओके, मीम साकिन में। अब इजहार, पहले हम इसमें आते हैं। सॉरी सर, ओके, अब इदगाम हम के लिए शद जरूरी है ना? शद नहीं, वो आगे हम आते हैं, शद। वो आते हैं, वो नहीं, अब वो बात की बात है, वो हम आते हैं अच्छा चलिए इस पे। अब इक्फा, अच्छा इक्फा में क्या होता है, मीम बा साकिन के बाद, मीम साकिन के बाद आ जाएगा बा, लेटर बा, तो क्या होगा, इक्फा होगा। मीम साकिन के बाद मीम आ जाएगा, ये सब मीम साकिन पहले है, उसके बाद मीम साकिन है, उसके बाद बा आ गया, या मीम साकिन के बाद मीम, एक और मीम आ गया। अगर बा आ गया तो इक्फा होगा, इक्फा शफवी बोलेंगे। शफवी मतलब क्या हो गया, सर शफवी श- शफतेन को कहते हैं। शफतेन, होठों शफवी से अदा मतलब लिप्स, ये मीम लिप्स से अदा होता है ना, तो इसको बोलते हैं इक्फा शफवी, मतलब ये मीम वाला है, ये लिप्स वाला है। ओके, इक्फा सफवी, इदगाम सफवी, इजहार सफवी। ओके, अब ये आ गया मीम। अब अरबिक में कितने लेटर्स होते हैं, 29। 28 अलिफ छोड़ 28 के 28। अब बाकी कितने बचे, बा निकल गया, मीम निकल गया, कितने बचे, 26 बचे सर। 26। 26। ओके 26 बचे, ठीक है। अब ये, अब क्या होगा, अब मीम के बाद बा आ गया तो इसमें भी गुन्ना होगा, मीम के बाद लेवल अलग, मीम आ गया, इसमें भी गुन्ना होगा, मीम के बाद और इसके अलावा और कोई लेटर होगा तो उसमें सबसे कम लेवल, सबसे कम है सेकंड लास्ट, उसमें भी गुन्ना होगा लेकिन कम दर्जे का होगा। ठीक है, अब ये समझ गया आप, मीम के आप तीन सिनेरियो हैं, मीम के बाद बा, मीम साकिन के, मीम साकिन के बाद बा, मीम साकिन के बाद एक और मीम, और मीम साकिन के बाद इन दोनों के अलावा 26 लेटर्स में से कोई भी आए तो वो क्या होगा, उसको इजहार करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोग को? अब किस तरह करेंगे, अब वो हम देखते हैं, चलिए। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ अच्छा सर, एक बार रिपीट कीजिए। नो प्रॉब्लम। सर ये, हाँ नहीं, ऊपर का सर अभी जो बोले ना, वो इक्फा बोले सर, इजहार बोले आप। ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, डायग्राम देख लीजिए, इसमें तीन चीजें, एक इक्फा सफवी, इक्फा सर ये इदगाम लेके और इजहार। लगवाने प्लीज आप लोग माइक तो ऑफ, माइक के माइक ऑफ करें, फिर पहले माइक ऑफ करें आप लोग। ये तीन है, इक्फा है, इदगाम है और इजहार है। इक्फा में क्या होता है, मीम साकिन के बाद बा आता है। इदगाम सफवी में क्या होता है, मीम साकिन के बाद मीम होता है, एक और मीम आ जाता है, हरकत हो, कोई भी हरकत होगी उस पर, ठीक है, आ जाता है। इजहार में क्या होता है, मीम साकिन के बाद इन दोनों लेटर के अलावा, मीम और बा के अलावा और कोई भी लेटर आ जाता है तो उसको इजहार करेंगे। ठीक है, ये लेटर आप समझ गए, अब इसको कैसे पढ़ेंगे वो हम ये आपको बता, वो हम देखते हैं। चलिए, ये क्लियर हो गया ना आपको? चलिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ये देखिए, ये मीम साकिन है, उसके बाद एक और मीम आ गया, नहीं आ गया? जी हाँ सर। जी सर। अच्छा, ये क्या हुआ हमारा, इदगाम हुआ, इक्फा इदगाम हुआ हुआ, सर। इदगाम इदगाम हुआ, इदगाम इदगाम। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, मीम साकिन, एक और मीम आ गया, यहाँ क्या हो गया, इदगाम क्या? इदगाम ही हुआ सर। यहाँ पे भी इदगाम, यहाँ पे भी इदगाम। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं, अरबी में, अरबिक में क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल एक सुकून लगा है, मीम साकिन, यहाँ पे एक और मीम आ गया। अब दो, ये जो मीम साकिन है ना, ये वर्ड के आखिर में है, दूसरा मीम जो है ना, दूसरा वही हरकत के साथ होगा, ये वर्ड नेक्स्ट वर्ड के शुरू में है। मैंने बताया था आप लोग को, इदगाम एक कलमे में नहीं होगा, उसके लिए दो वर्ड्स में होता है इदगाम। अब दो मीम हो गए, तो अरबी का कायदा है, ये पहला मीम ऐसे रखेंगे, दूसरे मीम पे लगा देंगे शद्दा लगा देंगे, तस्दीर लगा देंगे, ये अरबी का कायदा है।
لیکن 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 یہ پڑھتے وقت اس کو نہیں پڑھیں گے، یہ صرف لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. اوکے، تو ہم نے کیا کیا، میم ساکن کے بعد ایک اور میم تھا، اس پہ لگا کوئی حرکت لگا لی، زبر لگا لیجیے، تو یہاں پہ ایسے آ جائے گا، ایک سکون والا دوسرا متحرک، پہلا سکون والا دوسرا حرکت والا. تو عربی کا ایک رول کیا ہوتا تھا، میں نے دوسرا دو میم ہو گیا نا یہاں، یہ میم ساکن اور میم حرکت والا، تو دوسرا جو میم ہے نا اس پہ ہم لگا دیں گے شد حرکت کے ساتھ. اب جب پڑھیں گے تو پہلے والے کو نہیں پڑھیں گے، مطلب کیا، اوکے. اب یہاں پہ ہم نے پڑھا ربہم من، ربہم من، کتنے میم پڑھے ہم نے یہاں پہ؟ 2 سر. دو پڑھے، لیکن دو سر. ہیں کتنے یہاں پہ، کتنے میم ہیں؟ 3 ہے. 3. تو میں نے یہ سکون والا میم نہیں پڑھا. ہاں، ربی بی کو میں نے کیا، ہاں ربی ہم، ہی کو ڈائریکٹلی میم تشدید میں ملا دیا، ربی ہم من. اوکے، اب یہاں پہ بھی علی قلوبہم ما، ہم یہاں پہ بھی 3 میم ہیں، لیکن میں نے اس والے کو نہیں پڑھا، اس کو ہی کو اس میں ملا دیا تشدید پہ، ہم. تو سکون والا لکھا جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہے. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگ کو؟ جی کلیئر نا؟ جی سر الحمدللہ. ہاں، جب ایک اور چیز یاد رکھیں، کبھی بھی اگر سکون اور تشدید دونوں آپس میں آ جاتے ہیں تو بھاری کون ہے؟ سکون بھاری ہے، تشدید بھاری ہے؟ تجدید سر. تجدید سکون میں پڑھیے. ایک حرف ہے، تشدید میں 2 حرف دو ہے. حرف ہے. ہاں، تو کیا ہوگا، ہمیشہ اب ایک معیار میں 2 تلوار نہیں رہ سکتی ہے نا، تو کیا ہوگا، اس کو یہ لکھا جائے گا لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا، پڑھیں گے اس کو. اوکے، یہ قاعدہ آپ یاد رکھیں، بہت کام میں آئے گا، یہ کام بہت کام آئے گا آپ کے آگے. اوکے، جی سر. چلیے اب یہ ہو گیا ہمارا. اچھا، اب اس میں کلر کوڈڈ قرآن ہے نا، یہ جو میرے پاس جو ہے، اس میں جو میں لایا ہوں، اس میں کیا ہے، یہ ہے ادغام، میم ساکن کے بعد ایک اور میم آنا، اس کو بولتے ہیں ادغام صفوی، ادغام میم ساکن. اس کے پورے میں لائٹ گرین کلر ہے، پورے قرآن میں اس کا کلر کیا ہے، لائٹ گرین. فار ایگزامپل آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، یہاں دیکھتے رہیے، میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ گیا، اس میں کیا لگی، تشدید لگائیں گے. ادغام میں بنا تشدید کے ادغام ہوگا ہی نہیں. ابھی کسی نے پوچھا تھا ادغام، وہاں پہ تشدید نہیں، لیکن ہم نے لگائی ہے وہاں پہ. اگر عربی قرآن دیکھیں گے نا، عربی قرآن میں تشدید نہیں لگی ہوگی، لیکن ہمارے انڈو پاک قرآن میں تشدید لگی ہوگی. تو ہم نے وہاں تشدید، ادغام میں تشدید ضرور ہوگی، کوئی بھی ادغام ہو، میم ساکن کا ہو یا نون ساکن تنوین کا ہو. اوکے، اب یہاں پلیز دھیان دیجیے، پلیز کس کی آواز آ رہی ہے مائک سے؟ رقیہ. آپ لوگ چلیے، اب یہاں دیکھیے، آپ لوگ یہاں دیکھیے، میم ساکن کے بعد ایک اور میم، یہ بھی سیم کلر. اوکے، لائٹ، یہ ڈارک مت دیکھیے، لائٹ. اوکے، اب یہاں دیکھیے، میم ساکن کے بعد ایک اور میم، میم ساکن کے بعد ایک اور میم تشدید کے ساتھ، میم ساکن کے بعد ایک اور میم، پورے سب کلر کیا ہے، ایک ہی کلر ہے. اوکے، لائٹ گرین ہے. لائٹ گرین ہے. چلیے، لائٹ گرین اقدام نا سر. اوکے اوکے. بدر النساء بیٹا، آپ اس کو پڑھیے، مجھے پڑھ کے بتائیے کیسے پڑھیں گے. جی سر. یہ پہلے والا جو انڈرلائن کر رہا ہوں، انہم کیسے پڑھیں؟ انہم مبعوثون. ہاں، تو اب یہاں پہ کیا ہوگی، یہ تشدید آ گئی نا، تو ہم کیا کریں گے، اب تشدید آ گئی نا، اس کو تو نہیں پڑھ رہے ہیں. جب تشدید جی میم سر، میم پہ جب سکون تشدید والے ہوتی کو ہے تو نہیں پڑھ کے گناہ تجدید کون سا والے کو ہوتا ہے؟ پڑھ. ہاں، اب تشدید آ گئی یہاں پہ، سکون والا نہیں پڑھ، تو گناہ کون سا ہوتا ہے، ہائی لیول کا ہوتا ہے یا کون سا لیول کا ہائی گناہ ہوتا ہے؟ ہائی ہوتا ہے ہائی، سر. ہائی ہوتا ہے، یہ نمبر 1 سب سے مضبوط جی. گناہ ہوتا ہے. انہم، اوکے. اچھا، اس کو کیسے پڑھیں گے، اللہ قلوبہم، علی قلوبہم ما. ویری گڈ. چلیے، اس کو کیسے پڑھیں گے، یہ والے کو، ورائہم. ہاں، ورائہم محیط. اوکے. اب آپ لوگ کلیئر ہو گیا کس طرح پڑھتے ہیں ہم؟ جی سر. سب کو کلیئر ہے؟ کسی کو ڈاؤٹ تو نہیں ہے ابھی؟ اس میں بہت آسان ہے. جی سر الحمدللہ. اوکے، میم کیا اس میں کیا رول تھا،
मीम साकिन के बाद एक और मीम आ जाए, इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या अरबी, इसका रूल का नाम क्या है? इदगाम इदगाम सफवी। सफवी, और इदगाम में क्या होता है? इदगाम में क्या होता है? ये मर्ज, मिल जाता, मर्ज हो जाता सर। मर्ज हो जाता है। पहला साकिन होता है, दूसरा क्या होता है? तशदीद वाला होता है। तजदीद। तस्दीद वाला। मीम, पहला मीम साकिन, दूसरा मीम तशदीद वाला हो गया। ओके, चलिए जी अब ये था हमारा, ये था इदगाम का। अब हम दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। ओके, अब देखते हैं इक्फा, मतलब छुपाना। इसमें रूल क्या था? मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ आता है इसमें? बा, बा सर। इक्फा, मीम साकिन के बाद अगर बा आ गया, ओके, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? चलो उसमें भी गुन्ना करना है हमें। हाँ, उसको भी गुन्ना करना है, इकलाब नहीं है, इसको इकलाब नहीं कहते हैं, इकलाब नून साकिन का होता। चलिए ओके, अब यहाँ पे क्या आ गया? देखिए, मीम साकिन के बाद बा आ गया, मीम साकिन के बाद बा, जो ये सर्कल दिख रहा है आपको सब में, मीम साकिन के बाद बा आ गया। चलिए ओके, मरियम सैफ बेटा आप पढ़ के बताइए कैसे पढ़ेंगे इसको, प्लीज प्लीज। आप, मैं आप लोगों को बोल कर थक गया हूँ कि प्लीज, जिसका नाम, बाकी सब माइक म्यूट रखें। इसका नाम मैं भूल जाता हूँ, मैं किसको किसको बुलाया था, मैं भूल भी गया इसका नाम लिया था मैं। तो प्लीज आप लोग डिस्टर्ब ना करें, प्लीज, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से। रुकैया बेटा आप पढ़िए से। रुकैया आप अपना माइक अनम्यूट करिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आप यहाँ पे, अच्छा अच्छा, यहाँ बताइए, ये मीम मीम साकिन के बाद बा आ गया, तो यहाँ गुन्ना होगा या नहीं होगा? हेलो, अब मीम साकिन के बाद बा आ जाता है, मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ गया, तो यहाँ पे गुन्ना होगा या नहीं होगा? बेटा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जी सर। अच्छा, पढ़ के बताइए मुझे। रब्बहुम बिल गैब। हाँ, रब्बहुम, हुम कर, हुम, नाक में आवाज को हम होल्ड करके रखे, थोड़ा लंबा करे, जी। हुम लअल्लकुम बिलिक़ा, लअल्लकुम कुम, हाँ, रब्बहुम, हाँ यहाँ पे भी कर रब्बहुम। तो नाक में हम क्या कर रहे हैं? आवाज को थोड़ी देर रोक के रख रहे हैं, ठीक है? गुन्ना हो रहा है, जल्दी वाला गुन्ना नहीं हुआ, थोड़ा रोक के रख रहे हैं। सर एक बात पूछना है सर, जी 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 पूछिए। ये मीम पे तजदीद आया तो इसको कितना कितना है, और इसको ये बा आया तो कितना करना है सर? चल नो प्रॉब्लम, अभी हम आएंगे इस पे। देखो थोड़ा सा इसका अभी हम आएंगे जी। इसका सबका देखिए। अब जितने भी है ना, सबका जो है ना काउंट 2 से 3 सबके यही हैं, लेकिन फर्क क्या है? मजबूती में फर्क है। एक होगा स्ट्रॉन्ग, दूसरा होगा उसका लेवल में कम, वो भी हम आएंगे। सबके ड्यूरेशन, नाक में ले जाने की इसकी ड्यूरेशन जो है ना, दर्जात, अलग दर्जात के भी हम आएंगे, दर्जात पे आएंगे ना, उससे बताएंगे, उससे बताऊंगा मैं आपको। हर दर्जात के अलग अलग हैं, ठीक है? चलिए ओके, अब एक गुन्ना हो रहा। चलिए अब ये पढ़ के बताइए मुझे नीचे वाले, वमाहुम, ये पढ़िए। रब्बुहुम बिज़म्बिहिम। नहीं, ये नीचे, उसके नीचे, ये तो पढ़ गया, नीचे वाला ये नीचे रब्बुहुम। पढ़िए। अच्छा सर, रा पे तो कुछ है ही नहीं, तो रा नहीं तो वो नहीं छोड़िए, पड़ेगी। नहीं वो छोड़ दीजिए। वमा वमाहुम, से, हाँ, वमा हुम बिमुमिनीन। वमाहुम भी, हम में गुन्ना छोटा करेंगे, वमाहुम भी ऐसे पढ़ेंगे। वमा हाँ तो वो हुम हाँ तो वक्त बिमुमिनीन। लेंगे ना उसको, तो छोटा वाला नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे मीम के बाद बा है ना, उसको नाक पे ले जाना, वमा हुम बिमुमिनीन, तो बहुत छोटा हो गया है, तो दर्जात इससे कम हो गया इसको तो। वमा हुम बिमुमिनीन। नेक्स्ट पढ़िए। वमा हुम बिमुमिनीन। उसके बाद का फाइजा, हाँ, फाइजा हुम बिस्साहिराती। ओके, उसके बाद कुंतुम बिही कौन तुम तुकज्जिबून। भी, कौन तुम भी, तुम भी, ओके, तुम भी, ओके ओके। जी। अब इसमें क्या है देखो,
پہلے والے میں فرق کیا ہے؟ اس میں 2 سے 3 کاؤنٹ دونوں میں ہے، ادغام میں بھی اور اخفا میں بھی۔ فرق کیا ہے؟ ادغام مضبوطی ہے، اس میں تھوڑا والیوم زیادہ ہے، ہاں، اور اس میں کیا ہے؟ ہاں، اس میں کیا ہے؟ تھوڑا کم درجے میں کم ہے، لیکن لینتھ میں اتنا ہی ہے، صرف درجے میں کم ہے، لیکن اس کو بھی اتنا ہی کھینچیں گے، اس کو شارٹ نہیں کریں گے۔ اوکے، ابھی 2 ہو گئے، اب تیسرا آ گیا ہمارا، آگے کون سا تیسرا کیس کون سا تھا؟ اظہار، کلیئر۔ اب اس کا ہم ایگزامپل لکھتے ہیں۔ اچھا اس میں دیکھیے، اس میں جو اخفا جو ہے میم ساکن، سب کا کلر ہے پنک میں، میم کے بعد با، 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 میم کے بعد با۔ آپ دیکھنا پورے قرآن میں ایک ہی کلر ملے گا آپ کو، اس میں کوئی یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو، رول آپ کو صرف یہ ہے گننا دیکھنا کون سے درجے کا ہے، بس یہ اس میں ہاں گننا، جتنے بھی کلر ہے نا سب میں ناک میں آواز جائے گی، سر ناک میں اس آواز میں لمبا ایک کریں اور گے، ہے سر، لیکن کلکلا کا چھوڑ کے۔ سر اس میں اور ایک بھی ہے سر، ایک پہ چھوٹا میم ہے پھر با ہے 2 جگہ۔ نہیں وہ الگ چیز ہے، وہ اس پہ ہم آئیں گے، لیکن ناک میں سب میں آواز جائے گی، اچھا سب میں گننا ہوگا، صرف جتنے بھی کلر ہیں اس میں 7-8 کلر ہیں قرآن میں، سب میں گننا ہوگا، صرف ریڈ والے کو چھوڑ کے، کلکلا کو چھوڑ کے، کلکلا والے لیٹر کو چھوڑ کے، اس کا کلر ریڈ ہے، اس کو چھوڑ کے سب میں گننا ہوگا۔ تو آپ کے لیے آسان ہو گیا نا، جو بھی کلر والا آ گیا، کلکلا تو نہیں ہے نا، کلکلا نہیں ہے، سب میں گننا کرنا ہے آپ کو۔ اوکے، اب یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، چلیے اوکے۔ اب یہ تھا ہمارا، اب اظہار، انم بیٹا اپنا مائک آف کریں۔ چلیے اب ہم اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا۔ اس میں کون سے لیٹرز ہیں یہ آصفہ امام؟ میم اور با کو چھوڑ کے سر۔ اوکے، میم با کو چھوڑ کے، اچھا اب چلیے اب ہم اگزامپل لیتے ہیں اس کے اندر۔ اوکے، اب یہ آ گیا ہم ان، میم ساکن، اس کے بعد عین آ گیا، یہ عین با اور میم تو نہیں ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، ہو گیا ہم ان۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ کتنا کریں گے؟ غنہ تو ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ یہ توسط آ گیا ہے، یہ اظہار۔ تو ہم کیا تھوڑا وقت لیتے ہیں نا، ہم نے سکون میں دیکھا تھا نا، توسط کر دیا تھا نا اس کو، میم اور نون کو، ہم ان، ہم ان، ہم ان، ایسا نہیں کریں گے، ہم ان، نہیں یہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پہ نہ میم ہے، میم ساکن تو ہے، لیکن اس کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے، تو گننا کم لیول کا ہوگا، کم لیول درجات کا ہوگا، ہم ان۔ اب یہاں پہ آ گیا، یہ تو بہت فیمس ہے، کیا آ گیا؟ میم کے بعد میم ساکن تا آ گیا، تا 26 لیٹرز میں ہے، انعمتا، انعمتا، ہم ایسے پڑھتے ہیں انعمتا؟ کیا ہم ایسے پڑھتے ہیں؟ نہیں سر، نہیں پڑھتے نا، ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ انعمتا، امتا، تو لیول درجہ کم ہو گیا نا گننے کا، امتا، ہو گیا۔ اب یہاں پہ بھی میم کے بعد یا آ گیا، علم یجعل، علم یجعل، اوکے، اسی طرح یہاں پہ بھی ہو گیا علم نشرح، علم نشرح، اوکے۔ تو اس کو ہم نارمل پڑھیں گے، اس میں کوئی کلر نہیں ہوگا، اس میں ہمیں ناک میں آواز کھینچنا نہیں ہے، 2 سے 3 حرکت، جو نارمل نیچرل گننا جو ہوتا ہے، کوئی گننا ہے کہ ناک میں آواز جائے گی، تو اس میں کوئی کلر کوڈنگ نہیں ہوگا، کلر کوڈنگ نہیں ہے تو ہمیں نارمل پڑھنا ہے، توسط کے برابر ساکن ہے تو، اوکے۔ یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگ کو؟ سب کو کلیئر ہے یہ؟ جی سر، ایک بار انعمتا پڑھ کے بتا دیتے نا۔ اوکے، کیا بولے بیٹا آپ؟ بتایا نا میں نے، ہم ان بولے جو انعمتا، ہے نا، ایک بار انعمتا پڑھ کے بتائیے نا۔ اوکے، انعمتا، انعمتا، یہ گننا ہو گیا لمبا گننا، نون بھی آ گیا، نون بھی ساکن ہے اور میم بھی ساکن ہے، دونوں گننے والے ہیں نا۔ اگر میں نے پڑھ دیا انعمتا، یہ میں نے درجہ بڑھا دیا اس کا، جو غلط کر دیا میں نے، جبکہ گننا ہے لیکن گننے کا درجہ بڑھا دیا، کم درجے والا گننا ہے۔ انعمتا توسط والا ہے یہ،
अनअमता, मैंने क्या कर दिया, अनअमता। जैसे बा और मीम को पढ़ा ना, बा और मीम को पढ़ा, उसी तरह मैंने इसको भी पढ़ दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? जी सर। ओके, जी सर। अच्छा अब ये हमारा मीम का कायदा कितना कंप्लीट हो गया? ओके, बस इतना ही था। चलिए अब मैं आप लोग से, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को कुछ पूछना चाहूंगा। चलिए सुगरा यीशु बेटा, जी सर। आप मुझे बताइए मीम साकिन की जो रूल्स हैं, कौन कौन से रूल्स हैं मुझे बताइए, और उसमें कौन कौन से लेटर्स आते हैं? एक है इजहार शफवी, इजहार, एक ओके, इदगाम, इदगाम शफवी, इदगाम, ओके, वेरी गुड, और एक था इकफा। अच्छा अच्छा, इजहार में कितने लेटर्स हैं? इजहार में 26 लेटर है, अच्छा, 26। और इदगाम में? इदगाम में मीम साकिन के बाद मीम आना चाहिए। अच्छा, इकफा में? इकफा में मीम साकिन के बाद बा आएगा। ये बा आ गया, ओके, ये वेरी गुड। ये इसकी मीम साकिन की 3 कैटेगरीज हो गई, इसमें 3 में डिवाइड है इसका रूल, इजहार, इदगाम, इकफा। ओके, अब इदगाम इदगाम और इकफा में जो हम गुन्ना होगा वो दर्जे में कम होगा या थोड़ा ज्यादा होगा? इदगाम में ज्यादा होगा। ओके, और इकफा? इकफा में थोड़ा कम होगा उससे। हाँ, अच्छा, और इजहार में? इजहार में नहीं, मतलब होगा नहीं, मतलब जल्दी पड़ेंगे ना। नहीं नहीं, इजहार में तो मीम का जल्दी कैसे गुना पढ़े, तवस्सुत तो करते ही है अनअमता ना, जैसे, तवस्सुत तो कर, तवस्सुत जितना, तवस्सुत अनअमता। का जितना। हाँ, नहीं, गुन्ना तो होगा ही ना, मैंने क्या कहा, इसमें अच्छा तो अच्छा बिल्ट इन है, दर्जे में फर्क है, लेकिन गुन्ना तो होगा ही होगा। हम ये अच्छा, नहीं कह सकते कम गुन्ना नहीं होगा। होगा। हाँ, तो मतलब ये हो गया नंबर 1 सबसे ज्यादा, नंबर 2 और हाँ नंबर या 3, ठीक, राइट? ओके। दर्जे में ये हुआ ना, नंबर 1, अच्छा, नंबर 2, नंबर 3। ये कम ज्यादा नंबर दरमियान क्या बोलेंगे सर इसको फिर? 1 का मतलब सबसे ज्यादा, 2 ज्यादा। मतलब उससे कम, 3 मतलब उससे भी कम, ये अच्छा, दर्जे तो में। सेकंड वाला बताओ, दरमियान का, बीच का समझो, ना कम ना ज्यादा। हाँ, तो इसीलिए समझ आता है, इसमें ये यहाँ नहीं, थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा से लेवल कम रहेगा। लेवल लेवल कम है, कम मतलब क्या हुआ, उसकी थोड़ा मतलब वेव लाइक। लेंथ सेम रहेगी, नहीं देखो लंबाई में सेम रहेगा, उसको नहीं कर सकते हैं। जो वेव लेंथ है ना, समझो इतना है ना, उसको हम कम नहीं कर सकते हैं उसको, इदगाम लेंथ हो या सेम इख्फा रहेगी। हो, 2 से 3 हरकत है, कम क्या होगा, उसकी मजबूती में कमी होगी। एक अच्छा, मीम पे तस्दीद, इदगाम में तस्दीद आ जाएगी, तस्दीद वाला सबसे ज्यादा हैवी होता है, उसमें हैवीनेस में कमी होगी, लेंथ में कमी नहीं होगी। ये ध्यान रखें आप लोग, ये 2 से 3 है, इसको बोले 2 हरकत कर दें, नहीं नहीं, दोनों की 2 से 3 हरकत ही है, 2 हरकत या 3 हरकत, 2 से 3 हरकत ले लें, लेकिन इकफा में कमी हो जाएगी, सॉरी इजहार में कमी हो जाएगी। आप समझ लिएगा, है फॉर एग्जाम्पल 1.5 हरकत हो जाएगी, एग्जाम्पल समझाने के लिए, वो हमें कार्य को सुन के अंदाजा लगाना होगा, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन समझाने के लिए इसमें कमी हो जाएगी। अनअमता, अमता, कम हो गया ना, अम, लंबाई में कमी होगी ना, अमता, अमता, कमी हो गई नहीं हो गई, उसके हम जी खींचने, कम हो गया, हम लंबा नहीं खींचा ना। जी। ओके, हाँ, ये ध्यान रखिए आप, ये नहीं कि ये इदगाम लंबाई नंबर 1, तीनों में सेम रहेंगी ना सर? नहीं नहीं, तीनों में सेम कैसे रहेगी, लंबाई, इजहार में कम रहेगी। अच्छा, लंबाई भी कम रहेंगी। आप सुन के देखिए ना, अमता, अमता, और इसमें क्या हो गया, रब्बिहिम, ज़म्बिहिम, बी हिम, लंबा खींच रहा हूं ना मैं, हिम, हिम। अब ये देखिए ना, लअल्लकुम, कुम, कितना लंबा खींचा है मैंने, कुम, और यहाँ पे कुलूबिहिम, हिम, हिम, नाक में आवाज को थोड़ा होल्ड करा नहीं, कह रहा मैंने, थोड़ा रोक के रखा नहीं, रोका,
को ये रोका नहीं जी रोका, सर। वो अमता अनअमता रोका मैंने, अनअमता नहीं अनअमता, ये क्या तीनों लेवल सेम है? नहीं तीनों नहीं का सर, अलग अलग वक्त की अलग मिकदार अलग सेम है? नहीं है ना, अलग नहीं है। है नहीं। बाकी दोनों की सेम है, मीम के बाद मीम साकिन के बाद मीम साकिन के बा, दोनों की वक्त की मिकदार सेम है, लेकिन दर्जात में फर्क है, उसकी इंटेंसिटी मजबूती में फर्क है। लेकिन ये अनमता में अमता में कम है सर। है, उसमें दर्जा में फर्क है, दर में फर्क है। ओके, क्लियर हो गया? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है, क्लियर आ रहा है आपकी आवाज। नहीं सर, आवाज बाकी कट लोग रही को है आवाज आपकी। आ रही है? कट रही है नहीं नहीं साफ? सर, आवाज नहीं, कट कट रही आ रही रही है सर, कट रही है, कट रही है सर। अभी भी कट रही सर, आवाज ब्रेक ब्रेक हो क्या रही सर? नेट का हो सकता प्रॉब्लम है, एक मिनट। चलो वही ओके, आपकी आवाज साफ है सर, उनकी अभी तरफ आवाज सही? योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ, हाँ, नो सर, इट्स नॉट क्लियर। अब अभी भी क्लियर नहीं है? अब आ रही सर बराबर। अब आ रही सर। अब यस सर, इट्स आवाज क्लियर क्लियर। है? यस सर, यस यस, क्लियर ना? ओके, नेट का अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है इशू होगा, बट हाँ ओके चलो ओके, ये क्लियर हो गया, मीम का रूल क्लियर हो गया? जी सर। ओके, जी सर, अब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम आते हैं इस पे, आते हैं दूसरा रूल हमारा जो है नून साकिन और तनवीन। ये तनवीन हो गया ना, दो जबर दो जेर दो पेश। ओके, ये दोनों एक ही हैं। ओके, अब इसमें कितने, उसमें कितने थे? तीन थे ना, इसमें चार हैं। इजहार, नहीं हम नून साकिन का बोल रहे हैं सर, अब इदगाम। हाँ, अब हम नून साकिन और तनवीन पे आ रहे हैं। मीम साकिन का रूल तीन ही थे, वो हमने पढ़ लिए, इकलाब और इस्लाम इकफा। मतलब इसमें चार हैं, इसमें एक जो इजाफा है, किसका इजाफा है? इखलाब। इकलाब का, ठीक है, इकलाब का। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं। मेन चीज हमें लेटर याद रखना है, ठीक है। इकलाब का मतलब क्या होता है? चेंज कर देना, बदल देना, बदलना। ओके, तब्दीली कर देना। इकफा तो बताया छुपाना, इदगाम मुदगम होना, मिल जाना, मर्ज कर देना, इजहार जाहिर करना। इकलाब का मतलब क्या है? चेंज करना, बदल देना। ओके, अब हम एक एक करके आते हैं। इजहार में छोड़ो। तीसरा क्या है सर? वो क्या समझे? सर तीसरा वाला क्या? इखलाब। तीसरा है इकलाब, इकलाब या कल्ब, इसको कल्ब भी बोलते हैं, QALB। इकलाब या कल्ब दोनों का भी, हाँ ऐसा कभी कल्ब भी लिखा होता है कुरान में, इकलाब भी लिखा होता है, ठीक है। ये हमारा ये एक्स्ट्रा है। मीम साकी में तीन रूल है, इसमें चौथा रूल ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। अच्छा, इजार, ये मुझे बताइए, चलिए बुशरा बेटा आप मुझे बताइए, जो गले से जो हर्फ निकलते हैं, लेटर्स निकलते गले से, थ्रोट लेटर्स, हरूफ हल्की कौन कौन से हैं हलक से जो निकलते हैं? बुशरा बताइए, और कोई नहीं बताएगा प्लीज। बुशरा। हा खा और हा हा खा हमजा। तो है नहीं, हमजा हा आइन हा हमजा काइन हमजा। तो आइन हा तो काइन नीलूफर बेटा आप बताइए, नीलूफर बेटा आप बताइए, हरूफ हल्की कौन कौन से हैं हलक से निकलने वाले? हमजा हा ऐन हा। हाँ बताइए। हमजा हा ऐन हा और दो सर में भूल गई, अभी ध्यान नहीं आ रहा। 6 थे। इसी में डॉट लगा दीजिए, डॉट लगा, आइन पे डॉट लगा दीजिए और हा पे डॉट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? गैन खा। यही चीज है, इस पे डॉट लगा दिया, आइन पे डॉट लगा दिया, क्या हो जाएगा? गाइन हो जाएगा। हा पे लगाया खा हो जाएगा, बस। ये है हरूफ हलकी, क्या कहते हैं? हरूफ हलकी थ्रोट लेटर।
गले से निकलता है ना, जी हमजा सर। हा निचले हिस्से से, आइन हा बीच के, गैन खा ऊपर के हिस्से जो हमारे मुंह के करीब है। ओके, ये हो गया हरूफ हलकी। ओके, आप पहले लेते हैं। अब इदगाम में कौन से लेटर हैं? यर मलून, यर मलून, या रा यर मीम लाम वाव नून, यर मलून, यर मलून, ये एक है, ये इस वर्ड में बता। जैसे मैं कुतुबुजद बनाया, कलकला के लिए बना कुतुबुजद ना, इसी तरह इसके लिए इदगाम के लेटर्स हैं नून साकिन तनवीन के, यर मलून, या रा मीम लाम वाव नून, यर मलून। ओके, अब ये हो गया। अब इसमें क्या है, कल्ब का क्या एक ही लेटर है, बा। ये किसके बाद? नून साकिन या तनवीन के बाद इनमें से कोई भी आएगा। नून साकिन तनवीन के बाद हमजा हा आइन हा गैन खा आ गया तो क्या होगा? इजहार हो जाएगा। नून साकिन या तनवीन का इजहार हो जाएगा। ये यरमलून में से कोई आ गया, क्या होगा? नून साकिन या तनवीन का इदगाम हो जाएगा। बा आ गया, क्या होगा? इकलाब हो जाएगा। अब कितने हैं यहाँ पे? 6 हो गए। 13 यहाँ सर। पे कितने? यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे 1। अब हो गया हमारे 13। कितने बचे हमारे? 15 लेटर, 15 बचे, 15 बचे ना। ये है इख्फा। अब हम 15 को याद करने की जरूरत है हमें 15 को याद करना है? नहीं सर। हमें कितने याद रखना है? ये 6 और ये 6 और ये 1। हाँ, जिस तरह हमें मीम साकिन में 2 याद रखना है, मीम और बा। बस बाकी डिफॉल्ट उसमें आ जाएंगे हमारे। ठीक है जी। अगर कोई कहे नहीं है मुझे, मैं वो मीम और बा मुझे याद नहीं रहेगा, मैं तो 26 को याद रखूंगा, बाकी 2 बचे इसमें आ जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? ऐसे को इंटेलिजेंट कहेंगे? क्या कहेंगे आपको? बेवकूफ। बोले हाँ, ठीक। तो ये ठीक है। तो आप लोग तो ये मतलब हमें 2 याद रखना, बाकी जो बचे उसमें आ गए। चलो, इसी तरह हमें 6 याद रखना, 13 याद रखना है, बाकी जो इस 13 के अलावा है सब आ गए हमारे इक्फा में आ गए। ओके, तो आप लोग का मेन काम क्या है? ये आपको याद है। तो याद नहीं भी है तो कलर बता देगा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ये कलर कोडिंग है ना, उसमें सब आ जाएगा। तो आपको याद भी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन याद करना है अच्छा कि, और फिर आगे पहुंचाना भी है ना आप लोग को। ये हो गया हमारा नून साकिन तनवीन के रूल। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर, ये रूल हाँ ओके, हम इम्प्लीमेंटेशन तभी देखेंगे। क्लियर हो गया ना अभी? जी सर। चलिए अब हम आते हैं इस पे आते हैं। चलिए ओके, चलिए अब हम आते हैं। अब ये रूल आ गया, नया रूल स्टार्ट हो गया नून साकिन और तनवीन का। अच्छा, अब यहाँ लिखा है, मैंने लिखा है बिन का मतलब क्या हो गया? बा और नून करके, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है और इसे हम इस तरह लिखते हैं। उनको इसमें भी नून छुपा हुआ है और इसमें भी नून छुपा हुआ है। ओके, ये हो गया। अब ये 4 रूल अभी हमने देखे, ये 4 रूल जो है ये देखें। इसके इजहार में ये लेटर्स आ गए, इदगाम में यरमुलून आ गया, कल में बा आ गया, बाकी इक्फा में 15 लेटर्स आ गए। ये आ गया 6, 1 और 15, ये फाइल में आ गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे अनाउंस करनी थी। ये जो मैं अभी जो इस वीडियो की, या जो ट्यूसडे वेडनेसडे जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है डाउट क्लियरिंग, ये दोनों कोई वीडियो, आज की वीडियो हो या दूसरी वीडियो हो, तो अब आज की तो शिवा मैम डालती हैं ग्रुप में, कोई भी वीडियो, उसमें अभी मैंने क्या कि लोगों को मतलब उसमें कमेंट में आया था कि उनको PDF फाइल चाहिए। तो आप लोग को तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, लेकिन काफी लोग यूट्यूब देखते हैं जो हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, तो उनका कमेंट आता है कि उनको PDF फाइल कहाँ से मिल सकती है। तो अब मैंने क्या किया है, आप लोगों को इसी में जो भी लेक्चर होगा, जो वीडियो रिकॉर्डिंग, जो भी वीडियो आएगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे ना, आपको मिला इस क्लास के नोट्स PDF उसका लिंक होगा। आप लिंक क्लिक करेंगे तो PDF फाइल खुल जाएगी। ठीक है, अभी भले ये PDF फाइल्स में एक दिन बाद डालूं, क्योंकि पहले शिवा मैम वीडियो पोस्ट करेंगी, उसके बाद मैं उसका लिंक बाद में देता हूँ, तो इसमें थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन जो मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ ट्यूसडे और वेडनेसडे, उसमें आपको फौरन मैं ऐड करके भेजता हूँ। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें, आपको PDF किसी को प्रॉब्लम नहीं मिल रही है तो डायरेक्टली उस लिंक में जाएं, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका PDF का लिंक मिल जाएगा जो नेट पे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, एक तो ये रह गया। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो डाउट क्लियरिंग जो होता है ट्यूसडे और वेडनेसडे को होता है 9:15 बजे।
अब इंशाल्लाह अब क्या होगा, मंडे और ट्यूसडे को होगा, ताकि एक दिन आप लोग को उस तरफ कर दिया, मंडे और ट्यूसडे को होगा हमारा 9:15, वो टाइमिंग वही होंगे, लेकिन एक दिन मैंने और आगे कर दिया है, ठीक है। कौन सा होगा ये आप लोग नोट रखें, मंडे और ट्यूसडे, मैं ग्रुप पे पोस्ट मंडे कर दूंगा। ट्यूसडे, अब हमारा डाउट क्लियरिंग ट्यूसडे वेडनेसडे के बजाय मंडे ट्यूसडे। हाँ मंडे एंड ट्यूसडे, नॉट ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है। ओके, ये नोट, ये जो चीज आप लोग नोट रख लें, नोट कर लें। ओके चलिए, जी सर। ओके ओके, हमारा सबसे हमने पहले देखा था इजहार। ओके, अब एग्जांपल हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मिन, नून साकिन आ गया। ओके, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुने, इंशाल्लाह हम ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे होगा ना, उसमें हम और जाकर उसको क्या करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, वो आएगा। फिलहाल आप सिर्फ समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। चलिए, अब ये क्या आ गया, नून साकिन आ गया। उसके बाद कौन सा है यहाँ पे, हमजा है। ये हमजा हरूफ हल्की है या नहीं है? ओके, हम क्या करते हैं इसको, मिन अजलिन ऐसे पढ़ते हैं हम, मिन अजलिन, मिन नहीं, हम जाहिर करते हैं, मतलब हिंस को नॉर्मल पढ़ते हैं तवस्सुत के बराबर। हाँ, तवस्सुत के बराबर, मिन अजलिन भी नहीं पढ़ते, जब तवस्सुत वक्त देते हैं ना, सुकून है ना, मिन अजलिन, मिन नाक में आवाज को हम रोक के नहीं रखते हैं, सिर्फ नाक से आवाज निकल के हम आगे बढ़ जाते हैं, मिन अजलिन। अब यहाँ आ गया हा, ये भी हुरूफ हल्की है, मिनहुम ऐसा नहीं करते हैं। अभी आइन आ गया, ये भी हुरूफ हल्की है, अनअमता, अनमता ये गलत हो जाएगा, अनमता नहीं, अनअमता, और ये अनअमता ये भी गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको तवस्सुत करना है, अनअमता। अभी हा आ गया, नून साकिन के बाद हा आ गया, ये भी हुरूफ हल्की है, मिन हक्की, सॉरी हक्किन, मिन हक्किन, मिन नहीं करना है हमें। अभी गैन आ गया नून साकिन के बाद, ये भी हुरूफ हल्की है, मिन गैरिही, गैरिही, मिन नहीं करना है हमें। अभी आ गया खौ, ये भी हुरूफ हल्की है, मिन खौफिन, ओके। ये था नून साकिन। अब नीचे एग्जाम्पल क्या है, तनवीन का, दो जेर, दो जबर, दो पेश, दो पेश, दो पेश, दो पेश, ये तनवीन है ना। तो कभी नून साकिन के साथ ये हर्फ आएंगे, हमजा हा आइना गैन खा, ये कभी तनवीन के साथ आएंगे। तो तनवीन के साथ हो या नून साकिन के साथ हो, हमारे रूल में कोई फर्क नहीं होगा, कि दोनों में नून साकिन होता है। अब यहाँ आ गया हम, तनवीन के साथ आ गया, तो सेम हमजा आ गया, कब कैसे पढ़े, कफ़ारिन असीमिन, कफ़ारिन असीमिन, कफ़ारिन रिन नहीं करेंगे हम इसको। कल ना, कल्लन हदैना, सॉरी कुल्लन हदैना, कुल्लन हदैना, कुल्लन हदैना, ये सही है, कुल्लन नहीं सर, हदैना नहीं, क्या क्या मैंने इसमें गुना कर लंबा कर दिया मैंने। अब ये समीउन अलीमुन ये सही है, नहीं सर, नहीं सर, गुन्ना करे क्या सर। ज्यादा लंबा कर दिया, गुन्ना लंबा कर दिया, मतलब हाँ गुन्ना लंबा कर दिया, समीउन अलीमुन, अब सही है, जी सर, सही है। ओके, अभी इसी तरह आ गया, अलीमुन हकीमुन, गफूरुन, सॉरी अफुव्वुन गफूरुन, अलैहिम खबीरुन, अलैकुम खबीरुन, ये सही हो गया, अलैकुम कुम। ओके, यहाँ पे क्या इजहार, मतलब ज्यादा वक्त नहीं लेना है। जो हमें इजहार में क्या करते हैं, तवस्सुत इतना पढ़ते, हमने तवस्सुत देखा था ना, सुकून में क्या करते, तवस्सुत की ओर पढ़ते हैं, इसका थोड़ा वक्त तो लेना ही है हमें। ओके, ये हो गया हमारा अलीमुन खबीरुन, अलीमुन खबीरुन। ओके ओके, हाँ नहीं इतनी जल्दी भी नहीं, अलीमुन खबीरुन ये जल्दी हो गया ना, ये तो अलीमुन खबीरुन नहीं, ये भी नहीं, अलीमुन
मखरज सही अदा करना है। अलीमुन खबीरुन, अलीमुन मुन, अलीमुन खबीरुन, जल्दी हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, इसमें थोड़ा वक्त देना है इसमें, देखिए लंबा नहीं करना है। अच्छा आप ये बताइए, अब यहाँ पे तनवीन, अच्छा यहाँ पे क्या आ गया, चलो यहाँ पे तनवीन आ गया, इसके बाद हमजा आ गया जेर के साथ, तो ये कौन सा रूल है? ये इधर है, इजहार। इजहार है। नून के बाद हा आ गया, ये कौन सा रूल है? ये भी ये इजहार नून है। साकिन के बाद इधर इधर है सर। इजहार है ये भी। नून के बाद इजहार है, खौ आ गया, ये कौन? इजहार। हाँ, तनवीन के बाद, तनवीन के बाद हमजा आ गया, इजहार। इजहार। ठीक है। अब यहाँ तनवीन के बाद हमजा आ गया, इजहार। इजहार। अच्छा अच्छा चलिए अब ओके, फरा बेटा, फरा खिलजी, आप ये पढ़ के पढ़िए इसको, ये लाइन पढ़िए, फरा जल्दी पढ़िए बेटा। और कुरैशी बेटा पढ़िए, दुर्दाना कुरैशी आप पढ़िए इसको। पढ़िए। अच्छा यहाँ पे लंबा गुना करेंगे, अंडरलाइन है, हाँ वेरी गुड। अच्छा आप दूसरा पढ़िए, ये इतना ही पढ़िए। वन हर्ट, फिर से पढ़िए। वन हर्ट, हाँ ओके, थोड़ा वक्त देना है, वन हर, ओके। वन हर्ट, और यहाँ पे उसके बाद ये मिन खौफिन, इसके बाद नहीं, थोड़ा वक्त दीजिए, मिन खौफिन, मिन मिन, थोड़ा तवस्सुत है ना, थोड़ा वक्त तो वक्त देना है ना, जल्दी ना खींच के, मिन खौफिन, ओके। अभी अबदन इज़ा सल्ला, अबदन इज़ा, दन इज़ा, ओके। अब यहाँ पे क्या आ गया, हाँ, फअम्मा मन आपो, ओके। ये हम थोड़ा वक्त लेंगे, ओके। ये था हमारा इजहार, ओके। गुन्ना होगा लेकिन कम दर्जे का होगा, ओके। अब हम आते हैं सेकंड इदगाम में। इदगाम में हमने क्या लेटर देखे थे? यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून, ये हमने कितने लेटर देखे? 6 सर, थे 6 लेटर देखे। इसके बाद नून साकिन या तनवीन के बाद, किसके बाद आए तो नून साकिन या तनवीन के बाद, ठीक है। अच्छा इसमें 6 लेटर में ये 6 लेटर जो है ना, ये 2 में डिवाइड हुआ है, इदगाम गुन्ना के साथ, इदगाम बिना गुन्ना के साथ। अगर यनमु या मीम नून या वाव, नून साकिन तनवीन के वजह 4 आए तो क्या होगा? इदगाम भी होगा गुन्ने के साथ। और लाम और रॉ आ जाए, इदगाम तो होगा लेकिन गुन्ना नहीं होगा, ओके। अब अभी हम देखते हैं, चलिए किस तरह होता, ठीक है। इसमें 2 कैटेगरी हैं, इदगाम माल गुन्ना और उसके इदगाम बिना गुन्ना, ओके। अब चलो यहाँ देखते हैं, चलिए। अब यहाँ पे क्या आ गया? नून साकिन, उसके बाद या आ गया। हमने क्या कहा था? मीम नून वाव या, इसमें क्या होगा? गुन्ना होगा, ठीक है। और लाम रा पे गुन्ना नहीं होगा, ठीक है। इदगाम तो होगा, तस्दीद भी होगी, इदगाम होगा, तस्दीद तो होना ही है, लेकिन नाक में आवाज नहीं जाएगी। चलो अब यहाँ क्या, नून साकिन के बाद या है तो यहाँ गुन्ना करेंगे, यस जी सर। करेंगे। आप कैसे पढ़ेंगे? अच्छा अब यहाँ पे नून भी, सुकून भी है, तस्दीद भी आ गई, दोनों साथ में आ गया ना। अब इसमें से किसको हटाएंगे? इसमें से नून हाँ तो मैंने बताया था ना, एक तो हटा देते हैं, इसलिए ही मैार में 2 तलवार नहीं रह सकती। हाँ
सुकून और तस्दीद साथ में आ गए, आसपास में आ गए, तो क्या करेंगे, सुकून को हम लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। अब माँ को, माँ जबर को या में मिला देंगे, और नाक में नून को हटा तो दिया लेकिन इसकी आवाज नहीं हटेगी। मई, अगर हम आवाज भी हटा के होगा मई 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 यफअलु, मई यफअलु, ये नाक में आवाज आ रही है, मई यफअलु, मई नहीं आ रही, यफअलु, नहीं आ नहीं रही आ ना। रही। तो हाँ, नून तो हम नहीं पढ़ेंगे, सुकून नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आवाज उसकी नाक की रहेगी, आवाज नाक में जाएगी। मई यफअलु, मई नाक में आवाज आ रही नहीं जा रही? जी सर। हाँ, तो मतलब इसका असर बाकी रहेगा, भले हम इसको नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली मीम को या में मिला देते हैं, लेकिन इसका असर बाकी रहता है। अभी आ गया यहाँ पे मीम, नून के बाद मीम आ गया, ये भी इदगाम का लेटर है मीम। हमने क्या पढ़ा, इसको नहीं पढ़ेंगे, मिम मिस्ली ही, ये आसान से है मिम, इसको करें हम क्या करें, मिम ना करेंगे। अभी इसके बाद क्या आ गया, नून के बाद एक और नून आ गया, ये भी इदगाम का लेटर है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, फलन नुश्रिका, फलन नुश्रिका, ओके। अब यहाँ पे आ गया दूसरा, नून के बाद वाव आ गया, वाव भी इदगाम का लेटर है, गुन्ने वाला लेटर है, हम पढ़ेंगे म्यू वलीन, म्यू मिव, मिव नहीं पढ़ेंगे, मिव पढ़ा तो नून का असर ही खत्म हो गया, नून का असर बाकी रहेगा, म्यू वलीन, वलीन, ओके। अब ये था नून साकिन का। अब यहाँ पे आ गया तनवीन, वही चीज है, खई रोई रोई यरहु, रोई खई रोई रोई यरहु नहीं पढ़ेंगे तो असर खत्म हो जाएगा। खै रोई रोई नाक में ही चला गई, खैरुम रुम मिन सुल्तानन नसीरो, सुल्तानन नन नसीरो। अभी यूं शैइम वकीलुन, शैइम वकीलुन नहीं पढ़ेंगे, शैइम वकीलुन तो इसमें नून का असर ही खत्म हो गया, शैइम वकीलुन, ओके। क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए, अब यहाँ पे नून साकिन के बाद लाम आ गया, तो ये कौन सा है, गुन्ने वाला है, गुन्ने वाला। अच्छा, अब इसको कैसे पढ़ते हैं, इल्लम, नून की कहीं आवाज है इसमें, इल्लम, इल्लम नहीं है ना, नहीं सर। तो मतलब इसको नून की है, इसको बोलते हैं बिल्कुल, इसमें क्या हुआ, बिल्कुल गायब हो गया ये, आवाज ही इसकी नून की आवाज ही नहीं आ रही। अब यहाँ देखो, नून के बाद रॉ आ गया, हम कैसे पढ़ते हैं, मर रब्बू का, मर रब्बू का, ओके। इसमें भी नून की आवाज बिल्कुल गायब हो गई है। ओके, इसमें भी मर रब्बू का नून की आवाज नहीं आ रही। अब ये तनवीन, रिज़्क़ल्लकुम, रिज़्क़न नहीं हो रहा है, रिज़्क़ल्लकुम, यहाँ भी नून की आवाज नहीं आ रही है। गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीमुन, तो अक्सर पता नहीं चला यहाँ पे है तनवीन है कि नहीं, तो मतलब ये है कि हाँ, अब यहाँ पे क्योंकि इदगाम हो रहा है तो तस्दीद है, तस्दीद है, तस्दीद है, तस्दीद है, वो तो रहेगी लेकिन नाक वाली आवाज नहीं रहेगी। क्लियर हो गया आप लोग को ये? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखिए, अब है अच्छा, ये ओके। अब ये बताइए, चलिए, सुन वानुन, सॉरी सिन वानुन, अभी नून आ गया, नून साकिन, उसके बाद वाह आ गया, तो यहाँ पे गुन्ना होगा। प्लीज अपना माइक ऑफ करें जब तक मैं नहीं बोलूँ आप लोग को ऑन करने के लिए। नबीला को कब, नबीला बेटा आप मुझे बताइए, अभी यहाँ आ गया नून साकिन, उसके बाद वाह आ गया, तो क्या गुन्ना करेंगे? अब बताइए, इसको पढ़ के बताइए मुझे। यहाँ पे पढ़ेंगे सिनवानुन, करेंगे गुन्ना करेंगे यहाँ पर सर, गुन्ना करेंगे, नहीं करेंगे सर, गुन्ना क्यों करेंगे? एक मिनट जिसे पूछो जवाब दे, गुन्ना क्यों करेंगे? हम गुन्ना करेंगे
सर क्योंकि यहाँ पर नून आ रहा है और तनवीन भी आ रही है, तस्जीद आ रही है शायद, नहीं यहाँ पर साकिन है शायद, क्या है ये? नहीं जज़म है यहाँ पर, यहाँ पे क्या, नहीं नहीं, नून पे सुकून है, उसके बाद वाव जज़म आ है ना गया। सर। ये तो सर हाँ, हम नून तो ये साकिन उसके बाद वाह, नून साकिन के बाद तो वाह आ सर हम गया। ऐसे अगर हम ऐसे पढ़ेंगे सिवानुन तो गलत होगा ना, सिवानुन पढ़ेंगे तो सही हो रहेगा। वाह, सिवानुन तो कोई नहीं, वर्ड अब ही नहीं मेरा होता है कहने ना। का मतलब क्या, नहीं, इदगाम इदगाम का रूल है या नहीं? नून साकिन उसके बाद सर वाह, इदगाम का रूल, सर इदगाम का रूल है इसमें, इदगाम है इसमें। इदगाम है ना, नून साकिन के बाद वाह आ गया। अच्छा, इदगाम में कौन कौन से लेटर होते हैं? जी, नून साकिन के बाद वाह आ गया ना, तो यहाँ पर तो इदगाम हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर इदगाम नहीं होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं देखिए होगा फिर से सर। एक मिनट, मैं किससे पूछ रहा हूँ, देखिए मैं जिससे पूछना पहले वो जवाब बाद में आप लोग से पूछ लूंगा, तो प्लीज मैं जिससे, अच्छा बेटा इदगाम में कौन कौन से लेटर्स होते हैं? या राम मीम वाव नून लाम। हाँ ओके, अच्छा इदगाम में, अच्छा इदगाम में पहला हर्फ कौन सा होता है इदगाम में? नून या साकिन नून या साकिन के तनवीन? बाद या आ जाए। नून साकिन तनवीन के बाद ही तो आएंगे। नून साकिन या तनवीन के बाद ये 6 में से कोई भी आते हैं, लेकिन नून नून साकिन वाव तनवीन मीम, का तो होना लाजिम है ना। नून वाव मीम। अच्छा, तो ओके चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नून साकिन है उसके बाद वाव आ गया, तो आपके हिसाब से सर इदगाम यहाँ होना पर चाहिए तो यहाँ पे ना। यहाँ पर तो इदगाम हो नहीं रहा है, यहाँ पर तो यक्फा हो रहा है, यहाँ पर तो सिनवानुन है ना, नहीं सिनवानुन। ओके, नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इदगाम 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 करेंगे, अगर इदगाम हो तो यहाँ पे तस्दीद भी नहीं है। अच्छा एक और चीज मैंने बताई थी, इदगाम एक वर्ड में इजहार है। कलीमे में होता है। इदगाम के लिए शर्त क्या है? इदगाम के लिए शर्त क्या है? तजदीद कि होना। दूसरे से नहीं, मिलना। इदगाम के लिए शर्त, इदगाम दो दो लेटर्स होने चाहिए, दो कलमे अलग में अलग होता है, वर्ड। लेटर नहीं, 2 वर्ड्स में होता है। दो अलग अलग पहले कलमे। वर्ड में सर नून अगर साकिन सारे तनवीन लोग होता है बोलेंगे तो समझ और में नहीं आ दूसरे पा रहा कलमे है। में शुरू में, हाँ सर अगर इसीलिए तो सारे लोग मसला ना, बोलेंगे इसलिए तो मैं बार समझ बार में नहीं आ बोलता हूँ, पा जिससे रहा है। पूछ रहा हूँ वही है, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार वाले के लोग को समझ में नहीं आ रहा, मैं इसे क्या कैसे समझाऊं कि मैं जिससे पूछ रहा हूँ वही जवाब दे। हाँ, इसमें क्या होगा, क्योंकि ये एक ही वर्ड है, सिनवानुन, सिनवानुन एक ही वर्ड है ये। और अब यहाँ पे क्या है देखिए, इन अलग है, लम अलग है, रिस्कन अलग है, लकुम अलग है, जितने भी हैं यहाँ देखिए ना, मन अलग, ये अलग है, सब दो दो वर्ड में है। पहले वर्ड में आखिर में क्या है, नून साकिन या तनवीन। दूसरे वर्ड के शुरू में क्या है, उसके लेटर्स हैं इदगाम के। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही वर्ड में आया है, तो ये पूरे कुरान में 4 वर्ड हैं जहाँ पे इदगाम नहीं होगा, जबकि रूल हो रहा है यहाँ पे सिनवानुन, किनवानुन, बुनयानुन, बुनियानुन अद-दुनिया। अद-दुनिया, इसमें नॉर्मल पढ़े अद-दुनिया। ओके, ये आपसे बताने के लिए 4 इसमें नहीं होगा। ओके, हाँ ये क्योंकि ये एक वर्ड में है, एक वर्ड है पूरा ये। अद-दुनिया, अद अलग नहीं है, दुनिया अलग, ऐसा नहीं, एक ही वर्ड है, तो इसमें नहीं है। उसको बोलते हैं इजहार मुतलक। इजहार मुतलक का मतलब है किसी हर्फ को वजह और साफ तौर पे, वाज़े और साफ तौर पे पढ़ना, चाहे आम कवायद उस जगह इदगाम का तकाजा करते हो। यहाँ इदगाम का तकाजा हो रहा है, लेकिन हमें इसको नॉर्मल पढ़ना है, साफ पढ़ना है, इजहार की तरह क्लियर पढ़ना है। सिनवानुन, 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 सिनवानुन नहीं पढ़ना है हमें। ओके, इसका नाम है इजहार मुतलक। ये 4 ही हैं पूरे कुरान में। ओके, अब ये हमारा ये हो गया। अब इदगाम में देखिए, इसमें कौन से पूरे जो लेटर जो है ना इदगाम के, ये कलर में देखिए, नून साकिन ये आ गया आपका, 2 के बाद ये आ गया इदगाम, ये आ गया, पूरे कलर ग्रीन में है। तनवीन के बाद वाव आ गया, तनवीन के बाद नून आ गया, तनवीन के बाद वाव आ गया, तनवीन के बाद मीम आ गया,
नून के बाद नून आ गया। ओके ओके, ये पूरे उसमें क्या है, पूरे उसमें कलर क्या है, ग्रीन कलर है। ओके अच्छा चलिए, एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। पूरे इसमें क्या, पूरे इसमें ग्रीन कलर है। चलो अब मैं किसी से क्वेश्चन पूछता हूँ। रेशमा अंजुम बेटा, रेशमा बेटा। जी सर। चलिए जल्दी मतलब। अच्छा अब यहाँ जी पे कैसे सर। पढ़ेंगे, चलिए ये पढ़िए, ये वाला पढ़िए, ये हब्बो नुफरिजा बिही। हाँ हब्बाऊ, हाँ पढ़िए। हब्बो वबाता व नबाता। अब यहाँ रुक गए, क्या पढ़ा आपने, ता, वनबाता। नबाता। ओके अच्छा, यहाँ पे क्यों दिया है, यहाँ पे कलर जी ग्रीन कलर जो होता है तो इदगाम का होता है, यहाँ तो जी इदगाम नहीं किया आपने, नबाता पढ़ा। रेड कलर ग्रीन में क्यों है, यहाँ तो इदगाम नबाता की वजह पढ़ा से। हाँ, नबा, हाँ हब्बाऊ, यहाँ तो हो गया चलो इदगाम, हब्बाऊ व नबाता। ये तो अलिफ जी मत इसके करके रुक बाद गए हम। तस्जीद है ना सर, इसके बाद न, तस्जीद है ना सर। न, तो तस्दीद है, तो ये जी है, सर। ये इदगाम हुआ यहाँ पे, हुआ सर, इदगाम नहीं कहाँ हुआ हुआ, सर इदगाम। जी सर। इदगाम नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। इदगाम क्यों नहीं हुआ, इसके बाद साकिन नहीं है ना सर। इदगाम इसलिए नहीं हुआ कि हम यहाँ रुक गए, हम जब रुक गए तो रुक गए तो सिर्फ तनवीन था, उसके बाद उसके हर्फ तो आए नहीं ना। एक कलमे में तनवीन है, दूसरे में क्या होना चाहिए, ये हुरूफ इदगाम है, लेकिन यहाँ हम रुक गए तो ये कट हो गया ना, ये अलग हो गया, तो अब जी दोनों सर। साथ में नहीं आए, एक दूसरे वर्ड के, यहाँ पे एक ही वर्ड में खत्म हो गया, दूसरा वर्ड स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब इदगाम जब होगा जब हम क्या करेंगे, हम इस पे रुकेंगे नहीं, नबा नबातम व जन्नातिन, नबा नबातम। अगर हम नहीं रुक रहे हैं तो अब दोनों आ गए, एक कलमे में तनवीन आ गया, दूसरे कलमे में वाव आ गया, जो हुरूफ एक इदगाम का हुरूफ है, हर्फ है। ठीक है, तो अगर हम नहीं रुकेंगे अच्छा। तब इदगाम होगा, रुकेंगे तो इदगाम नहीं होगा। इदगाम के लिए दोनों है ना, दो कलमे जी होना सर। चाहिए, एक में आखिरी में नून साकिन तनवीन होना चाहिए, दूसरे कलमे के शुरू में यरमलुल में से एक लेटर होना चाहिए। अब यहाँ पे जो रुक गए, ता करके खत्म, तो उसके बाद ता तो आ गया, ता हो गया, उसके बाद दूसरा लेटर तो है ही नहीं, इसके लिए अच्छा रुकेंगे तो इदगाम नहीं होगा, नहीं रुकेंगे तो इदगाम होगा। क्लियर हो गया आपको ये? ये अच्छा सर, रुकेंगे तो इदगाम नहीं होगा, हाँ अगर नहीं रुकेंगे तो इदगाम होगा। हाँ, तो अच्छा इदगाम सर। रुकेंगे, इदगाम इसलिए नहीं होगा क्योंकि दूसरा तो आया नहीं ना, जी अच्छा सर। उसके बगल में तो आया, स्टॉप हो गया तो बात कनेक्शन खत्म हो गया ना। अब 12 अच्छा कंटिन्यू अच्छा। करेंगे, वह जन्नातिन, यहाँ रुक गए, नबाता, आयत खत्म होगी, फिर काट गए, वह जन्नातिन। तस्दीद को भी नहीं पढ़ेंगे हम, वाह पढ़ेंगे, तस्दीद को हम ध्यान नहीं देंगे, वो तस्दीद सिर्फ अच्छा सर। मिलाने के लिए है। अच्छा ओके सर। चलिए, अब ये हो गया जी हमारा सर। इदगाम का। चलिए अब इकलाब का जल्दी जल्दी पढ़ दूंगा ताकि ये हमारा इसको खत्म, इकलाब। चलिए अब नो प्रॉब्लम, एक काम करते हैं, इसको यहीं पे एंड कर देते हैं, ज्यादा आप लोग लंबा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब आप लोग से पूछो कुछ। यहाँ पे हमारा अभी इकलाब बचा हुआ है, हमारा इदगाम हो गया, इकलाब, तो इकलाब खत्म कर सकते हैं हम, एक ही बच जाएगा। चलो इकलाब कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए इकलाब में क्या है, चलिए नून साकिन तनवीन के बाद बा। चलिए रिंदी, चलो इसको मैं नो प्रॉब्लम। चलिए ओके, एक अब समरी में आप लोगों से पूछता हूँ। चलिए आप लोग को अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट टाइम देखिए, इकलाब, इकलाब बचा है हमारा और इकफा बचा है। ठीक है, ये दो चीजें में ज्यादा, इकफा और इकलाब बचा है। ओके, अब हम समराइज, इकफा इकलाब करने के, इकफा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सीखेंगे, इकलाब और इकफा सीखेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे अपने टॉपिक पे, गुन्ना के दर्जात, लेवल्स। अब समझ में अब आएगा, इस ये पूरा नून साकिन के रूल्स के बाद, नून साकिन तनवीन के रूल्स जानने के बाद, मीम साकिन के रूल जानने के बाद, फिर आपको ये समझ में आएगा। फिर मैं ये यहाँ फिर उसके कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ से आपको ये पूरे जो दर्जात जो जो है ना, 4 हैं, वो हम इंशाल्लाह अगले क्लास में लेंगे।
ओके, टू समराइज हमने क्या सीखा आज? गुन्ना सीखा, साकिन के रूल और नून साकिन। गुन्ना सीखा, उसके हमने दर्जात दर्जात के बारे में थोड़ा जाना, और ये दर्जात की इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, वो जरूरी क्यों है, इम्पोर्टेंस ऑफ ये लेवल्स, दर्जात की इम्पोर्टेंस क्यों है, ठीक है। ये हमने गुन्ना देखा, दर्जात देखा, इम्पोर्टेंस क्यों है ये देखा। उसके बाद हमने प्लीज अपने माइक ऑफ करें। उसके बाद उसके बाद हमने देखा, सॉरी, मीम साकिन के रूल देखे हमने। उसमें कितने रूल थे? 3 थे। 3 इख्फा इज़हार, हाँ, इज़हार, और इदगाम और ये इख्फा। ओके, इसमें था हमारा मीम साकिन के बाद एक और मीम साकिन के बाद बा, और ये बाकी 26 लेटर 26 लेटर बाकी 26 लेटर्स। ओके, ये था हमारा, ठीक है, ये था। और इसमें गुन्ना होगा, इसमें गुन्ना होगा थोड़ा, कितना होगा गुन्ना इसमें होगा? 2 से 3 हरकत, 2 से 3 हरकत। इसमें क्या होगा? कम गुन्ना होगा। समझो, इसमें ले लीजिए अपने इजहार में, समझ लीजिए ये 1.5 हरकत ले लीजिए, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं, वो हमें कारी की आवाज सुन के अंदाजा लगाना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम है, मिकदार सेम है, लेकिन इसमें फर्क है, इसकी मजबूती में फर्क है। ये सबसे नंबर 1 होगा, उसके दर्जे में ये 2 होगा, और ये होगा 3। चौथा वाला दर्जा अभी लिया नहीं। ओके, चलिए। उसके बाद हमने देखा था नून साकिन और तनवीन के बारे में। उसमें हमारे 4 थे। इज़हार, प्लीज इखलाब, इज़हार, इफ़्खा। मतलब म्यूट करें अपना माइक, म्यूट करें प्लीज, अपना सब माइक म्यूट करें। इदगाम, इकलाब और इज़हार, और ये इक्फा। इसमें थे हमजा हा, सॉरी, हमजा हा, आइन हा, गाइन खा। ओके, इसमें था यरमलून, यरमलून। ओके, और इसमें था बा, उसमें था बाकी 15 लेटर्स। ओके, इसमें कितना था गुन्ना? लेवल क्या था? कम दार था, हम लोग 1.5 हरकत। ओके, इसमें 2 से 3, इसमें 2 से 3, इसमें 2 से 3, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अलग दर्जे में अलग अलग फर्क को हम दर्जा तब वो पढ़ेंगे तो हम जानेंगे इसमें किसमें कितना फर्क है। ये एक है, ये एक है, और ये सब एक में आएंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कम है, इसका दर्जा कम है, ठीक है। ये हमने देखा। अब हमें क्या, इकलाब और इक्फा, अभी हमें इसमें हम डिटेल में गए नहीं अभी, ठीक है। अब ये 2 बचे। इसके बाद फिर हम दर्जात को डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि दर्जे कौन से ये जो हमने अभी जो पढ़ा ना, इदगाम, इक्फा, इकलाब, सबके किसमें कौन सा दर्जा नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ओके, तो 4 का बता दूं आपको। 4 जब होता है मीम पे जबर हो, हरकत हो, या नून पे हरकत हो, ये सबसे कम दर्जा वाला था, नंबर 4। नंबर 1 वाला होता है तस्दीद वाला होता है, नंबर 3 होता है सुकून वाला, नंबर 4 होता है हरकत वाला, ठीक है। तो 1, 2, ये 3 में बहुत मेन है, और 4 ये हो गया तस्दीद वाला। ओके, ओके, और ये मेन 2 है। तीसरा हो गया सुकून वाला, 4th हो गया हरकत वाला। ओके, अब ये जो बचा ना, ये मेन सीखने की चीज है। इसमें तो आसान है। ये 1 तस्दीद होती है, इसमें 2 और 3 में सुकून होता है, और 4th में हरकत होती है। तो हमें मेन ये है हमारा, ठीक है। तो ये आप सबको क्लियर हो गया। सर ये 2 पे क्या है? 2 पे बहुत सारी चीजें, इदगाम आएगा और अलग चीज आएगी, वो बहुत सारी चीजें आएंगी 2 पे। थर्ड सुकून है सर, फर्स्ट जी, तस्दीद, थर्ड सुकून, 4 हरकत। थर्ड में सुकून होगा। थर्ड में सुकून इजहार होगा, इजहार। थर्ड मतलब इजहार वाला होगा, इजहार। थर्ड में इजहार करते हैं ना हम, 1.5 हरकत खींचते हैं ना। हाँ, और उसमें हरकत में 1 हरकत खींचते हैं हम,
ना, फर्स्ट नी, में नू, तस्दीद है मा, सर, मी, मू, बस। फर्स्ट में तस्दीद है सर, हाँ, फर्स्ट में ज्यादा तस्दीद गुना होती है, फर्स्ट ज्यादा में गुना तस्दीद होती है। हाँ, फर्स्ट में लेवल तस्दीद होती है। हाँ, अब लेकिन आप ये सुनिए, इसकी मिकदार कितनी है? 203, 203। ओके, इसकी कितनी है? 1.5, इसकी है 1। ओके, गुना तो हो रहा है, आप समझ सकते हैं आप लोग उसको, ठीक है। सर सेकंड में पूरे आते हैं एकदम खराब सब। हाँ, ज्यादा करो सेकंड में आते हैं, जिसमें नहीं नहीं नहीं, इसमें जो एकदम जो होता एकदम जो होता है वो उसमें क्या आता है? वो आता है फर्स्ट में ही आता है, तस्दीद है ना उसमें। मीम जी सर। साकिन के बाद एक और मीम, तो तस्दीद वाली आ गई ना, इसमें जी तस्दीद सर है, वही। तो तस्दीद आ गई है तो वो हमारा उसमें है, तो हम डिटेल में देखेंगे। मीम साकिन के बाद मीम तस्दीद आ गई मीम पे। ओके, तो वो हम डिटेल में देखेंगे, तो ये होगा। ओके, चलिए, अब टाइम ज्यादा हो गया। चलिए, अब किसी को डाउट है इसमें जो सर दूसरा वाला कौन सा है सर? फर्स्ट वाला तस्दीद है। दूसरे वाले बेटा आप लोगों को सबर करना पड़ेगा, दूसरे वाले की बहुत लंबी लिस्ट है। जी सर। दूसरे वाले की बहुत लिस्ट है। सेकंड, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तस्दीद होती है, बाद में। थर्ड में सुकून होता है, और फोर्थ में हरकत होती है। अब सेकंड वाले में बहुत सारी चीजें हैं, आपको उसमें क्या रखना पड़ेगा? आपको सबर रखना पड़ेगा। अगर आपको जली है तो ये लिखा है, देखिए, नून साकिन सदोत, इदगाम शफवी, इदगाम नून साकिन तनवीन, सिर्फ हर्फ नून और मीम, ये सब लिखा है। ये इसमें ये आएगा फर्स्ट कैटेगरी में। सेकंड ये एग्जाम्पल आएगा फर्स्ट कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी में चलो मैं पीडीएफ फाइल आपको भेज दूंगा, आप लोग देखिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। ये सेकंड कैटेगरी में आ गया इदगाम या और वाव वाला। ओके, इस तरह के हैं वो सब, आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह डिटेल में हम इंशाल्लाह जाएंगे। ओके, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा है इसमें, तो अभी अब बता के कोई फायदा है नहीं। ओके, अब किसी को डाउट जल्दी बताइए, हम क्लास हमारा नहीं सर माशाल्लाह ऑलरेडी ज्यादा हो गया है, हम एंड करेंगे। नहीं सर। चलो एक काम करते हैं, अभी मैं क्लास एंड करता हूँ। किसी को डाउट हो वेट कर ले, बाकी लीव कर जाए, हमारा क्लास एंड हो गया है। किसी को डाउट है वो वेट कर सकता है, बाकी हम क्लास एंड कर देते हैं, दुआ पढ़ के रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। किसी को क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकता है। चलिए, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।